Hello students, welcome back to this YouTube channel. Today in the series of 11th Commerce OCM we'll continue with our chapter number 5, that is Forms of Business Organization. Before starting today's session, let us quickly recall what we have discussed till now. We started the chapter with introduction video, then we discussed the topic sole proprietorship. In that, meaning and concept, characteristics, advantages and disadvantages. Then in the next video we discussed about business run by Hindu Undivided Family, popularly known as HUF. In that we discussed about meaning and concept and then characteristics. Then in the next video we discuss about partnership. In that we discuss about meaning, concept and characteristics of partnership. And in the previous video we discussed about advantages and disadvantages of partnership. So today we'll start with a topic that is named as types of partner. We will learn how many types of partners are there in a partnership firm, and we'll also try to learn how many types of partnership firms are there or how partnership firms are classified. So before that we'll study what or how many types of partners are there. कितनी तरह के पार्टनर्स एक पार्टनरशिप फॉर्म में हो सकते हैं. ओके, देयर आर मेजरली 6 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स. देखते हैं क्या कौन कौन से हैं. फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ पार्टनर्स. फर्स्ट इज एक्टिव पार्टनर. फर्स्ट वन इज एक्टिव पार्टनर. And what is active partner? According to Partnership Act, the person who becomes a partner and takes keen part in the management is called an active partner. Such a partner gets his agreed share in profit and loss for the activities of the firm. He is called an agent of other partners. पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा पर्सन जो पार्टनर बना हो और मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्ट लेता हो, कीन पार्ट लेता हो, तो उसको हम एक्टिव पार्टनर कहेंगे और उसको ही हम एजेंट कहेंगे दूसरे पार्टनर्स का. अगर सारे पार्टनर्स एक्टिव है तो सारे एक दूसरे के एजेंट हुए. अगर 6 में से 4 पार्टनर एक्टिव रहते हैं तो 4 पार्टनर एजेंट हुए 6 पार्टनर्स के. ओके, सो फर्स्ट वन इज एक्टिव पार्टनर. नेक्स्ट इज स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर. The person who become a partner by the partnership deed and bears loss or profit but does not take an active part in management of the firm, then he is called dormant or sleeping partner. Though he is an inactive partner, but like other partners, his liability in the firm is unlimited. कोई ऐसा पार्टनर जो पार्टनरशिप डीड से पार्टनर बना हो किसी फर्म का, प्रॉफिट और लॉस भी शेयर करता हो, लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड हो, पर मैनेजमेंट के अंदर एक्टिव पार्ट ना हो, तो उसको हम बोलेंगे डोरमेंट और स्लीपिंग पार्टनर. उसको हम बोलेंगे डोरमेंट और स्लीपिंग पार्टनर. क्लियर? नेक्स्ट इज नॉमिनल पार्टनर. For a quick growth of new establishing firm and to stay alive in tough competition, if a well-known person allow his name to be used by a firm, then that person is called nominal partner. Nominal partner does not bring capital in the firm. He only allows his name to be used by the firm, so the goodwill of firm increases, but his liability like other partner remain unlimited. Means कि टफ कंपटीशन में रहने के लिए किसी नए फर्म को कोई वेल नोन पर्सनैलिटी या वेल नोन पर्सन उनका नाम यूज करने के लिए अलाउ करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे नॉमिनल पार्टनर. नॉमिनल पार्टनर कोई कैपिटल नहीं लाते, लेकिन उनकी भी बाकी पार्टनर्स की तरह उनकी भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है. तो मीन्स ऐसा कोई वेल नोन पर्सन जो फर्म की गुडविल बढ़ाने के लिए, फर्म का नाम करने के लिए, इमेज अच्छी करने के लिए खुद का नाम यूज करने दे एज अ पार्टनर, देन दैट पार्टनर इज नोन एज नॉमिनल पार्टनर. दैट पार्टनर इज नोन एज नॉमिनल पार्टनर. क्लियर? नेक्स्ट इज partner in profit only. If a person is made a partner in the firm to take advantages of his special skill, knowledge and experience, then such person is called partner in profit only. Partner in profit only
may or may not bring capital but he is entitled for profit. He is not to share loss of firm. जब कोई पर्सन उसकी स्पेशल स्किल नॉलेज या एक्सपीरियंस के जैसे पार्टनर बना हो तो उसको हम बोलेंगे पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली. पार्टनर इन प्रॉफिट जो होगा वो चाहे तो कैपिटल ला सकता है, ना चाहे तो कैपिटल ना भी लाए. उसके ऊपर कोई फिक्स नहीं है कि ना आपको कैपिटल लाना ही पड़ेगा या नहीं लाना. ही मे और मे नॉट ब्रिंग द कैपिटल, लेकिन वो सिर्फ हमेशा प्रॉफिट ही शेयर करेगा बिजनेस के. लॉस में कोई शेयरिंग उसकी होगी नहीं. लॉस में उसकी कोई शेयरिंग होगी नहीं. क्लियर. नेक्स्ट इज पार्टनर बाय एन एस्ट्रोपल और होल्डिंग आउट. द पर्सन हु हैज नॉट साइन द पार्टनरशिप डीड, ये ध्यान से समझना, द पर्सन who has not signed the partnership deed does not bring capital, does not share profit, but on the basis of his behavior, when a third party assume him as a partner, then he is called partner by estoppel or holding out. Though he cannot take part in management and profit, as third party does business with the firm, after taking his credit, his liability become unlimited. Means कोई ऐसा पार्टनर जिसने पार्टनरशिप डीड भी साइन नहीं करी, कैपिटल भी नहीं लाए, पार्टनर्स मतलब कंपनी बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस भी शेयर नहीं कर रहे, लेकिन वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि उसके बिहेवियर पे किसी ने उसको एज अ पार्टनर मान के कंपनी के साथ बिजनेस किया है, देन द पर्सन बिकम्स पार्टनर बाय एस्ट्रोपल और होल्डिंग आउट. और उस केस में उस पर्टिकुलर केस में उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड बन जाती है, हालांकि वो तब भी मैनेजमेंट और प्रॉफिट में कोई पार्ट नहीं लेता. क्लियर. इसका एग्जांपल समझिए, सपोज आपके कोई फ्रेंड का कैफे है. ओके. आप हमेशा उसकी शॉप पे बैठे रहते हैं, आप उसके शॉप पे उसके कैशियर पे बैठे रहते हैं, उसके कैश काउंटर पे बैठे रहते हैं. तो कोई XYZ आया, आपका नोन पर्सन है, उसने ये मान के करा कि ये आपके फ्रेंड के साथ पार्टनरशिप में कैफे ओपन किया और आपको 1000 केक का ऑर्डर दिया. ठीक है, आपको पता है कि आप पार्टनर नहीं हो, लेकिन जिस ने ऑर्डर दिया उसने तो आपको ये मान के दिया कि आप पार्टनरशिप में हो उसके साथ. तो जब तक वो 1000 केक का ऑर्डर डिलीवर नहीं हो जाता, तब तक आप पार्टनर बाय एस्ट्रोपल या पार्टनर बाय होल्डिंग आउट हो. हाँ, अगर उसमें कोई लॉस हुआ, उसमें कोई प्रॉब्लम हुई, तो उसकी लाइबिलिटी में आप रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन प्रॉफिट में आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो. प्रॉफिट में आपका कोई पार्ट नहीं है. दैट इज नोन एज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट और पार्टनर बाय एस्ट्रोपल. क्लियर. And last one is minor partner. According to Partnership Act, only adult person is able to sign a partnership deed. पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सिर्फ एडल्ट पर्सन ही पार्टनरशिप डीड को साइन कर सकते हैं. तो सिर्फ एडल्ट पर्सन ही पार्टनर बन सकेंगे, एक माइनर नहीं बन सकता. लेकिन जब एक पार्टनर की डेथ होती है तो उसका जो माइनर चाइल्ड है उसको हम माइनर पार्टनर बना सकते हैं. माइनर पार्टनर पे कोई लाइबिलिटी नहीं होती फर्म को पे करने की. कोई भी क्रेडिटर माइनर पार्टनर की कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं ले सकते. हाँ, वो जब एडल्ट बन जाएगा, जब माइनर पार्टनर एडल्ट होगा, तब उसके पास चॉइस होगी कि उसको पार्टनरशिप में कंटिन्यू करना है अदर्स पार्टनर की तरह या पार्टनरशिप छोड़ देनी है. क्लियर. सो दीज वर द 6 टाइप्स ऑफ पार्टनर दैट एनी पार्टनरशिप फर्म कैन हैव. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. Types of partnership firm can be determined on the basis of 3. First is according to time limit, according to liability, according to registration. According to time limit देखा जाए तो एक होती है पार्टनरशिप एट विल, एक टर्म पार्टनरशिप, एक पार्टनरशिप फॉर स्पेसिफिक वर्क. According to liability, partnership with limited liability, partnership with unlimited liability. And according to registration, registered and unregistered. तो पॉइंट नंबर बी एंड सी तो इजी दिख रहा है. पॉइंट नंबर फर्स्ट में ही तीन टाइप की पार्टनरशिप फॉर्म है. तो चलो देखते हैं. वैसे सब इजी है, कॉन्सेप्चुअल वाइज देखेंगे तो सब इजीली समझ में आ जाएगी. तो लेट अस स्टार्ट विद अकॉर्डिंग टू टाइम लिमिट. अकॉर्डिंग टू टाइम लिमिट में फर्स्ट है पार्टनरशिप एट विल. इन दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप फर्म, द लाइफ स्पैन ऑफ फर्म डिपेंड्स अपॉन विशेज ऑफ द पार्टनर्स. देयर इज नो टाइम लिमिट. द फर्म एग्जिस्ट टिल देयर इज यूनिटी and agreement among partner. If any one of partner wishes to dissolve the firm, then according to law by giving notice he can bring the dissolution of firm.
पार्टनरशिप ऑफ विल में कोई टाइम लिमिट नहीं होती, ये पार्टनर की विश के अकॉर्डिंग चलती है। जब तक सब पार्टनर्स के बीच में यूनिटी है, एग्रीमेंट है, फर्म चलती रहेगी। जब भी किसी एक पार्टनर को लगेगा नहीं अब बिजनेस कंटिन्यू करने जैसा नहीं है इन पार्टनर्स के साथ, तो वो लीगल नोटिस भेज के पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकता है, एंड कर सकता है, क्लोज कर सकता है। दैट इज पार्टनरशिप एट विल के अकॉर्डिंग चलेगी। नेक्स्ट इज टर्म पार्टनरशिप। टर्म पार्टनरशिप इज जब टाइम लिमिट के साथ ही पार्टनरशिप डीड स्टार्ट की हो, पार्टनरशिप स्टार्ट की हो, उसको हम कहते हैं टर्म पार्टनरशिप, कि भैया 6 मंथ के लिए, 1 ईयर के लिए, 5 ईयर के लिए, दैट इज नोन एज टर्म पार्टनरशिप। जैसे टाइम लिमिट खत्म होगी, पार्टनरशिप फर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी, पार्टनरशिप फर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। क्लियर? एंड नेक्स्ट इज पार्टनरशिप फर्म फॉर स्पेसिफिक वर्क। स्पेसिफिक वर्क मीन्स according to partnership deed, when a partnership firm is established for completing a specific job, then it is called partnership firm for a specific work. जैसे किसी पर्टिकुलर काम के लिए, पर्टिकुलर जॉब के लिए कोई पार्टनरशिप बनी हो, तो उसको बोलेंगे हम पार्टनरशिप फर्म फॉर स्पेसिफिक वर्क। जैसे कि बड़े बड़े ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन है, हाईवेज कंस्ट्रक्शन है, उनके लिए पार्टनरशिप फर्म बनती है। तो सपोज वो ब्रिज बन गया या वो हाईवे बन गया, उसके बाद वो पार्टनरशिप फर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। See, example given is partnership firm for the construction of bridge, road, canal. Okay, that is known as partnership for specific work. तो according to time पे तीन हो गए, partnership at will, partnership for specific time and partnership for specific work. Now according to liability देखें तो दो फर्म है, with limited liability and unlimited liability. Partnership firm with limited liability क्या है? This is a special type of partnership firm excluding one partner. All partners liability can be kept limited. Means firm with limited partnership firm with limited liability में है कि अगर 2 पार्टनर्स है, 3 है, 5 है, 7 है, जितने भी पार्टनर्स है उसमें से किसी भी एक पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, बाकी सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी, बाकी सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। एंड नेक्स्ट इज पार्टनरशिप फर्म विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी। फर्म विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स जिसमें सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। अगर फर्म को लॉस होता है तो खुद की पर्सनल असेट्स बेचकर भी फर्म सारे पार्टनर्स को, ईच एंड एवरी पार्टनर को फर्म के डेट्स पे करने पड़ेंगे। और किस रेशियो में पे करेंगे? जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उस रेशियो के अकॉर्डिंग पे करेंगे। अनलिमिटेड फॉर ऑल पार्टनर्स। क्लियर? एंड नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन। अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन दो टाइप की पार्टनरशिप फर्म है, रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड। तो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, the firm which is registered with the registrar of the firm, then such firm is called registered partnership firm. When the partnership firm is registered, such firm can approach court of law for the recovery of debt from third party person. It is not compulsory to register a partnership firm, but it is advisable. तो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म वो होती है जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास रजिस्टर्ड हो। उनके खुद के एडवांटेजेस है कि आप कोर्ट ऑफ लॉ की हेल्प ले सकते हो अगर आपको कोई पेमेंट नहीं कर रही थर्ड पार्टी। हमेशा कहा है आगे भी कि कंपलसरी नहीं है पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना, लेकिन हमेशा से एडवाइजेबल रहा है। एंड लास्ट वन इज अनरजिस्टर्ड। द फर्म विच इज नॉट रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स इज कॉल्ड अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। ऐसी फर्म के लिए डिफिकल्ट होता है रिकवरी करना डेट्स की। जो पैसे दिए हुए किसी को मार्केट में या किसी से पैसे लेना, उसकी रिकवरी करना डिफिकल्ट होता है। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट today's session. We learned about types of partners and types of partnership. In the next session, next video of this chapter, we'll learn about registration of partnership firm. पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, क्या क्या प्रोसेस है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, उसमें डिटेल्स क्या क्या मेंशन होती है। ओके, if you are having any doubt, please fill down the comment section. Till then, stay home, stay safe, happy learning.